Hello everyone, let us continue our class, that is exercise 3.5, linear equation, pair of linear equation in two variables, solving by cross multiplication method. Okay, in our previous video, if you go through, in my previous video you have seen that we have solved up to question number 1 to last 3 or 4 questions we have solved. And I think you can solve the raised questions, but there is a question of this kind. See, this is a peculiar type of question, and this type of questions can also be solved by cross multiplication method after reducing them in their standard form. So let us reduce them and let us solve them by cross multiplication method. It is going to be an interesting one. So we have the two equations, that is thrice a by x minus twice b by y is equals to minus 5, and the other one is a by x plus twice b by y is equals to 2. Okay, so how to reduce them in their standard form? It's a very simple one, just to take LCM and cross multiply. Alright, so I must say that without to take LCM, you can do it orally in the same line. You can cross multiply as well as taking LCM, you will cross multiply in the same line. Okay, just you follow me, watch the video and try to follow what I am going to do. Alright, what will be the LCM of x and y in this case? That is xy. Alright, keep the LCM in your mind. Keep the LCM in your mind. That is LCM, that is xy. Alright, now let it be. You multiply crosswise here, 3 into thrice a into y. That will give you thrice a y minus twice b into x. Crosswise you multiply here, twice b into x. Twice b into x is equals to, now let us multiply the LCM with this part. Let us multiply the LCM with this part. What will it be? Minus 5xy. Is that okay? So this is what you have done. The LCM and cross multiplication together in the same line. Alright, now after this, let us shift this minus 5xy this side. Thrice a into y, or if you would like to write in the standard form, then it will be, first you write x, then you write y, then this xy. Alright, so what will you do? This portion I am writing beginning, that is twice bx. In the standard form, you must know, in the standard form we had a1x plus b1y plus c is equals to 0. Alright, that is first the x will come, then variable y will come, then the constant part will come. Alright, so first x, so I have brought this minus twice bx in the front, and this is positive, so it will be positive thrice ay. And let us bring this minus twice minus 5xy this side, and it will become plus 5xy. This side there will be 0. Alright, I hope you have understood. Now the similar way the second one we will do. This one also we are going to do the same one. What to do? सबसे पहले इसका LCM सोचें आप सभी. इसका LCM होगा x into y. ठीक है, LCM फिर से हमारे पास x into y आ गया है. तो इसको आप जस्ट सोचो और साइड करके रखो इसको. अभी इसका कोई काम नहीं है, बाद में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं. ठीक है, तो अभी करने वाले हैं क्या, हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है y into a, y into a. So if you multiply a crosswise, then it will be ay plus thrice b into a crosswise. नीचे से ऊपर thrice b into x crosswise को multiply thrice b into x is equals to, इधर इस ओर है 2. so हमारे पास जो LCM था पहले से ही वो xy था. LCM को इस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 times xy. तो ये हो गया आपका LCM और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक ही लाइन में. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही शॉर्टकट मेथड है. अभी जो है हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? सबसे पहले x वाला लिखेंगे, उसके बाद y, उसके बाद इसको हम इस ओर लेके आएंगे. तो हमें लिखना है क्या, थ्राइस bx प्लस ay
और इसको हम इसको लेके आए, दैट इज 2xy, उसको रह गया 0। तो हम अभी क्या करेंगे, इनके जो कोएफिशिएंट्स बनते हैं इन कोएफिशिएंट्स को हम इस तरीके से इधर लिख लेंगे, ठीक है। हमें लिखना है x का कोएफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, हमारे पास ट्वाइस b है, तो x का माइनस ट्वाइस b है, ठीक है। अभी उस सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, इधर है थ्राइस b, इधर है थ्राइस b, हम इसको नीचे लिखेंगे। अभी हम लिखेंगे y का कोएफिशिएंट। In the first equation, what is the coefficient of y? That is thrice a. हमारे पास क्या है यहाँ पे thrice a, तो हम लिखेंगे यहाँ पे thrice a। सेकंड जो इक्वेशन है या इसका y का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे a नीचे। और जो यहाँ पे बनता है कांस्टेंट पार्ट, तो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट नहीं दिखाई दे रहा अभी, तो हम क्या करेंगे, xy पार्ट है, हम इसको xy ही लिखेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे xy। तो xy का जो है कोएफिशिएंट कितना है, the first equation, what is the coefficient of xy? That is nothing but 5. In the second question, what is the coefficient of xy? xy का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, that is -2। क्लियर है यहाँ तक? Then we will repeat the coefficients of x once again। x का जो कोएफिशिएंट है हम इसको रिपीट करने वाले हैं एक बार। यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है माइनस ट्वाइस b और इधर ट्राइस b। ऑलराइट, तो अब जो है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। करेंगे कैसे, ध्यान रहे, हम इसको x डिवाइडेड बाय लिखेंगे। तरीका वही है, करने का पैटर्न जो है थोड़ा हमने चेंज किया है। इन द प्रीवियस वीडियो वी सोल्व डायरेक्ट x इक्वल्स टू राइटिंग द फॉर्मूला, हियर वी आर गोइंग टू शो द मेथड, शो द स्टेप्स। ऑलराइट, बस यहाँ पे स्टेप्स जो है शो करना है, किसलिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है कांस्टेंट पार्ट नहीं है, हमारे पास है xy, तो इसलिए हमने इसको स्टेप्स शो करके करने की कोशिश की है। तो देखिए कि x के लिए हमें x का कोएफिशिएंट छोड़ना होगा और बाकी के दो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने होंगे। जैसे कि for x you have to exclude this coefficients of x, after that you will multiply these two parts crosswise। 3 times a into -2, that is -6a, then put a minus sign यहाँ पे लिखना है, उसके बाद a into 5, ये हो गया 5 times a। समझ आ गई ये लाइन? उसके बाद y के कोएफिशिएंट्स को निकालने के लिए या फिर y का निकालने के लिए हमें y का कोएफिशिएंट जो है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। y के लिए हमें y का कोएफिशिएंट एक्सक्लूड करना है। तो रिमेनिंग 2 वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 5 into thrice b, so it will be 15b y के लिए, 5 into 3b, that is 15b, हमारे पास 15b आ जाता है, माइनस, हमें माइनस लिखना है यहाँ पे, उसके बाद ये वाला और ये वाला हमें मल्टीप्लाई करना है क्रॉस वाइज। नेगेटिव नेगेटिव पहले ही पॉजिटिव बन चुका है, और 2 into 2 is b, twice b, 2 times b, that is 4 times b। अभी जो हमें यहाँ पे लिखना था कांस्टेंट पार्ट, पर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट नहीं है और है उसके जगह हमें in the constant place we have xy, so we are going to write here xy, इसको हम xy ही लिखेंगे। So exclude the coefficients of xy, after that remaining 2 you are going to multiply, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको एक्सक्लूड करना है और बाकी के दो जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे क्या, इसको माइनस ट्वाइस ab माइनस ट्वाइस ab, इसके बाद माइनस साइन लिखना है और माइनस 3 times b into 3 times a, that is 9 times ab। ठीक है, अभी जो है और एक लाइन हम इनको सोल्व कर सकते हैं। सो लेट अस सोल्व फॉर वन लाइन। x y ये हो गया हमारे पास 11a माइनस 11a, और ये बन जाता है y बाई पॉजिटिव 11b, और ये हमारा बन जाता है xy डिवाइडेड बाय नेगेटिव 11ab। ठीक है, अभी हमें जो करना है, द स्टेप विल बी जस्ट कंपैरिजन, हमें कंपेयर करना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर से कैसे कंपेयर करेंगे, हम x बाई 11 माइनस 11ab के साथ ये जो लास्ट वाला xy बाई माइनस 11ab है, इसको हम
कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये वाला इक्वल है इसके साथ और ये वाला इक्वल है इसके साथ, तो तीनों के साथ इक्वल है, तो हमें कंपेयर करना है इसके साथ ये वाला, तो हमारे पास y का वैल्यू निकल जाएगा और y को इससे हम जब कंपेयर करेंगे और सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x का वैल्यू जो है हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, नाउ हम लिखेंगे नाउ वी आर गोइंग टू राइट x, वी आर गोइंग टू कंपेयर x by 11 negative 11a is equals to xy by negative 11ab। चलो ठीक है, समझ आ गया ये बात। तो दोनों में x x है, हम दोनों ओर से x x को कैंसिल कर सकते हैं। देखो तो रह गया हमारे पास 1 by 11a is equals to y by minus 11ab। तो minus 11ab को आप इस ओर लेके आओ, क्रॉस करो, तो आपके पास रह जाता है minus 11ab divided by minus 11a is equals to y। देखो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, minus 11 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, y equals to b रह गया। आपके पास आंसर y का वैल्यू b हो गया। I hope you have understood here y is equals to b। स्क्रीन पे नहीं आया होगा तो हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आप लोग इसको देख पाओ। ठीक है, हाँ अभी पक्का, ठीक है। तो y is equals to b हो गया। उसके बाद जो है हमें फिर से कंपेयर करना है, किसको किसके साथ कंपेयर करें, हम इसको कंपेयर करते हैं y, हमने इसको और इसको तो ऑलरेडी कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद y का वैल्यू जो है b निकल गया। अभी ये जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट को कंपेयर करेंगे लास्ट पार्ट के साथ, मतलब we are going to compare y by 11b is equals to xy by minus 11ab इसके साथ। Alright, so let's compare y by 11b is equals to xy by minus 11ab। तो आपको करना क्या है, यहाँ से y और y को कैंसिल करना है। ठीक है, दोनों ओर y है, हमारे पास इधर रह गया x by minus 11ab और इधर 1 by 11ab। so minus 11ab को आप जस्ट इस क्रॉस वाइज शिफ्ट करो इस ओर, तो बन जाएगा minus 11ab by b is equals to x। सॉरी नीचे 11b है, 11b, तो ये b और b कैंसिल हो गए, 11 और 11 कैंसिल हो गया, रह गया आपके पास minus a is equals to x। so x is equals to minus a। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं वो निकल गए, x is equals to minus a and b y is equals to yes b। So hope you have understood this solution. This solution is quite different than that of the previous solutions. All right. क्योंकि यहाँ पे x y पार्ट निकल जाता है, तो जैसे ही x y पार्ट निकल जाता है, देखा है हमने कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको करना क्या है, क्योंकि ये पहले वाले जो फॉर्मूला या फिर कांस्टेंट टर्म को लेकर के हम जो करते थे वो रेगुलर मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा चेंजेस आए थे इसमें, तो हमने इस चेंज को बरकरार रखा हुआ पे x y नहीं लिखना है, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म 1 नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। वेरी सिंपल सॉल्यूशन और वेरी सिंपली वी गॉट द सेम करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो I hope you have understood the solution. After this, we are going to solve the next question, that is question number 2 onwards. Raise the questions of question number 1. I hope you will do, because these are simple. Raise the questions are simple. So now let's begin question number 2 onwards. All right. Okay, now we have the second question. Look at, for which value of a and b does the following pair of linear equations have infinite numbers of solutions? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, for which value of a and b, a और b के जो है हमको वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, does the following pair of linear equations have infinite numbers of solution? तो कंडीशन जो दिया गया है वो है कि नीचे जो इक्वेशंस हमें दिख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले जो कंडीशन था, उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमें क्या करना है, ए और बी का जो वैल्यू है उसको निकालना है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, बहुत एंजॉय करने वाले हो आप लोग। चलो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है twice x plus twice y is equals to 7। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, 7 को इस ओर हम शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है बन जाएगा कुछ इस तरीके से, twice x
plus thrice y minus 7 is equals to 0. This is a first question. We are going to name it as question number 1. ठीक, उसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, a minus b x plus a plus b whole into y is equals to thrice a plus b minus 2. अभी करें क्या, ये जो पार्ट है thrice a plus b minus 2, we will consider this as the constant part and we will shift that constant from this side. तो ये बनेगा क्या, a minus b into x plus a plus b into y minus, इसको पूरा का पूरा इधर शिफ्ट करो विद ब्रैकेट, तो ये नेगेटिव आगे आ जाएगा, thrice a plus b minus 2. हमने इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है, देखो ब्रैकेट में रखने के बाद पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ इसको इधर शिफ्ट करना है, तो इसके आगे जो प्लस साइन था वो वाला माइनस बनेगा, बाकी का अंदर वाला जो भी चीज है उसको सेम रखना है. इज इक्वल्स टू 0. हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया. Now if you compare the coefficients, then in the first equation the coefficient of x is 2, in the second equation the coefficient of x is a minus b. Similar way, the coefficient of y in the first equation, that is 3. In the second equation, the coefficient of y is x plus y. Sorry, a plus b. The constant part in the first equation, that is minus 7, but the constant part in the second equation, that is minus within bracket thrice a plus b minus 2. All right. अभी बोला गया है these two equations have infinite numbers of solution. तो आप सभी को पता है कि under which conditions the given pair of linear equation will have infinite numbers of solution. तो हमें देखना है इस तरीके से है, since the pair of equations have infinite solutions, therefore the condition must satisfy is, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट है, असंख्य समाधान है इनके, तो कौन सा कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा, the condition will be a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. देखो हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड इन द इक्वेशंस. अगर हम फिर से a1 a2 b1 b2 वगैरह इस्तेमाल करते तो मे बी you're confused. So instead of applying small a small b, I have used the capital A capital B, that is capital letters. All right. तो ये जो कंडीशन था, all the ratios are equal. If all the ratios are equal, then the pair of linear equations are found to have infinite numbers of solution. अब यहाँ पे a1 का मतलब क्या है? a1 का मतलब यह है कि ये coefficient of x है. In the first equation, the first equation coefficient of x कितना है? What is the coefficient of x in the first equation? That is, yes, that is nothing but 2. In the second equation, what is the coefficient of x? That is a2. What is that? x को छोड़ करके कुछ भी है वो सारा का सारा coefficient of x में आएगा. x को छोड़ना है सिर्फ, और उसके बाद जो भी आता है वो सारा का सारा coefficient of x. तो ये होगा a minus b. Similar way, coefficient of y in the first equation, that is b1. b1 कितना है यहाँ पे? That is 3. और divided by b2, y को छोड़ करके जो भी है सेकंड इक्वेशन में उसको हम coefficient of y बोलेंगे, that is b2. मतलब कितना है यहाँ पे? a plus b है. ठीक उसी तरह constant term in the first equation, that is c1, that is minus 7, and the second equation constant term is minus bracket के भीतर जो भी है thrice a plus b minus 2. आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा. यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों हम कट कर सकते हैं. ठीक है. सो हमने यहाँ पे रेशियोज के मुताबिक जो कि रेशियोज इक्वल हैं, तो हमने यहाँ पे रेशियोज लिख लिए, इनके वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं. अभी करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में? हाँ, नेक्स्ट स्टेप में हमें बोला गया है कि ए और हमारा टारगेट है. व्हाट इज आवर टारगेट? द टारगेट इज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a and value of b. ये हमारा टारगेट है. ठीक है. तो यहां तक तो हमने देख लिया कि और यहाँ पे a और b का वैल्यू अभी तक निकला नहीं है फिलहाल. तो करें क्या?
इसको करने के लिए हम आगे जाते हैं, थोड़ा आगे करना पड़ेगा। हम जो है ये तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल है, तो हम किसी भी दो रेशियो को ले लेते हैं, उसको बाद इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो रेशियोज आप लिख लो, नाउ लिखो यहाँ पे, नाउ इन दोनों रेशियोज को आप मान लो, ले लो, और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। a 2 by a minus b is equals to 3 by a plus b, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो करें कैसे? 3 टाइम्स a माइनस b बन जाएगा थ्राइस a माइनस थ्राइस b, और इधर 2 टाइम्स a प्लस b बन जाएगा ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों को इस ओर लेके आते हैं, तो होता है क्या? थ्राइस a 2a पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव बनेगा, थ्राइस a से 2a चला गया तो a रह गया, समझ आई बात? इधर है b, ट्वाइस b को आप वहीं रख सकते हो या फिर आप इधर भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी करो आप। ट्वाइस b को हम इधर लेके आते हैं तो बन जाएगा माइनस ट्वाइस b, और आगे से माइनस ट्वाइस b है तो बन जाएगा कुल मिलाकर के माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। आपकी मर्जी, आप इसको यहीं पर रख सकते हो या फिर उस ओर भी ले जा सकते हो। इफ यू विश टू टेक इट दैट साइड देन इट विल बी a इक्वल्स टू माइनस 5b। चलो ठीक है, ये वाला एक पहला इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बना दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बना दिया। ठीक उसी तरह अभी जो है हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को कंपेयर करने जा रहे हैं। आपकी मर्जी, आप फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट को भी कंपेयर कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे कि मैंने बताया। तो जैसे हम इसमें यहां पे कर देते हैं, इतना जगह हमारे पास है, तो हम what we are going to do, we are going to compare the second part and the third part. You can however compare the first part and the third part also. You are going to get the same answer, final answer will be same, intermediate steps may get change. तो हमने इसको सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट के साथ कंपेयर करने की सोची है, तो कर लेते हैं। Also क्या करें? थ्राइस बाय a 3 by a plus b is equals to 7 by थ्राइस a plus b minus 2। अभी इनको जो है आपको क्रॉस करना है, क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा आपके पास? 7a प्लस 7b, a प्लस b के साथ 7 को क्रॉस करो तो 7a प्लस 7b, और इसको इस ओर ऐसे क्रॉस करो तो बनेगा 3 into 3 that is 9 times a, 9 times a, 3 into b that is plus thrice b minus 3 into 2 that is minus 6। चलो ठीक है। नाउ a को लेके आते हैं इधर, तो बनेगा क्या? 7a minus 9a। b को लेके जाते हैं उधर, तो क्या बनेगा? थ्राइस b पहले से ही है, माइनस 7b हो गया, माइनस 6 पहले से है। चलो व्हाट विल इट बी? ट्वाइस a, नेगेटिव ट्वाइस a, एंड दैट साइड इट विल बी, ये होगा माइनस 4 टाइम्स b माइनस 6। अभी 2, this equation can be divided by minus 2. All these terms are divisible by minus 2. So if you do that, आपको मिलेगा क्या? ये माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, सोचो, इसके नीचे माइनस 2 लगा दिया, सोचो, इसके नीचे भी माइनस 2 लगा दिया, सोचो, सोचना है, करना नहीं है, ठीक है। This part you need to think only, you need not to show. It is not necessary to show. Okay? आपको सोचना है। क्यों 2 से डिवाइड किया? भाई देखो ये 2 से डिविजिबल है तो कर सकते हैं, इसको 2 से डिविजिबल है तो कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर सकते हो। याद रहे, इसको 2 से और इसको 3 से नहीं कर सकोगे। अगर 2 से करना है तो सारे के सारों को 2 से करना ही है, ठीक है। It is not like you are dividing the first term by 2 and dividing the second term by 3, something like that. It is not done. Okay. So if you do like this, then it will be, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, रह गया a। इसको करने के पीछे कारण जो है वो बता रहा हूँ मैं। नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये हो गया पॉजिटिव ट्वाइस b, और जो ये है नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव 3 बन गया आपके पास। ये सेकंड इक्वेशन जो आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन 1 और 2 तो हमने पहले से ही बना रखा था, तो यहाँ पे ये बन जाएगा इक्वेशन 3, और ये जो बनेगा चौथा इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो नाउ let us solve this third equation and fourth equation to get the value of a and b. Very easily we are going to get the value. Now after solving a and b, you are going to get the value of a and b. So hope you have understood up to here. Very simple. These two equations are given to you. Just you have reduced it to the
स्टैंडर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट जो कंडीशन यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला जो कंडीशन है उस कंडीशन को अप्लाई किया और कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। उसके बाद दो दो पार्ट को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने दो इक्वेशंस बना दिए। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना बोला जाता और बोलता जाता कि इन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, उस कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। जो भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ओनली यू हैव टू प्रोसीड। ऑलराइट, नाउ लेट अस सोल्व। ये दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करने हैं। इसको सोल्व करते ही आपके पास a और b का जो वैल्यू है वो निकल आएगा। ठीक है, तो हमें ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूं। अब वीडियो को पॉज करो और ये सारे जो है लिख सकते हो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 3 में क्या है, a इक्वल टू -5b, और यहाँ पे क्वेश्चन 4 में है a इक्वल्स टू ट्वाइस b प्लस 3। ये भी a है, ये भी a है, मतलब ये है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, दिस इक्वेशन इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और दिस इक्वेशन के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, ये दोनों ही इक्वल है। अगर दो इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इक्वल होते हैं तो जरूरी है कि इसके राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पार्ट भी इक्वल हो, क्योंकि यूक्लिड्स का एक्सियम कहता है हमें कि द थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी है a के साथ इक्वल, ये भी है a के साथ इक्वल, तो डेफिनेटली ये वाला और ये वाला इक्वल बनेगा। द थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग यहाँ पे a है, देन द थिंग्स आर इक्वल, ये भी इक्वल हो गया। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स एक्सियम, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये वाला जो -5b है, इक्वेशन हम लिखेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज, हम लिखेंगे -5b, we are going to write -5b is equals to twice b plus 3, twice b plus 3. Just shift this twice b side and it will be -5b minus twice b is equals to 3, and it will be -7b is equals to 3, then b will be equals to 3 by 7। कहीं पे कुछ छूट गया जैसा लगता है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे देखो थोड़ा, यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो 5b है नेगेटिव 5b, if you shift it that side it becomes positive 5b। ठीक है, ये वाला देखो -5b को अगर आप उसको शिफ्ट करोगे तो ये +5b बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम हो गया था। बाकी सब ठीक है, बाकी सब करेक्ट है, जस्ट यू करेक्ट इट। ये वाला नेगेटिव 5b नहीं बनेगा, ये पॉजिटिव 5b बनेगा, क्योंकि -5b को आप उसको शिफ्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव 5b। तो जैसे आप कंपेयर करते हो इस पार्ट को, ये बनेगा पॉजिटिव 5b, ये भी पॉजिटिव 5b, ये होगा पॉजिटिव 5b से नेगेटिव 2b, तो ये बन जाएगा 3b, और ये जो है 3 divided by 3 बनेगा। तो अल्टीमेटली b वैल्यू इज फाउंड टू बी इक्वल्स टू 1। ये हो गया b का वैल्यू। अभी जो है b का वैल्यू निकलने के बाद आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो टू गेट द वैल्यू ऑफ a। तो इसको हम कहां पे करें, यहीं पे कर देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर पुटिंग b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर, कहां पे, इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है a इक्वल्स टू, यू हैव a इक्वल्स टू 5b, और b का जो वैल्यू अभी अभी निकला है दिस इज इक्वल्स टू 1, तो ये होगा 5 into 1 दैट विल बी 5। ठीक है, मतलब b का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू जो है वो 5 है। Therefore we will write therefore a is equals to 5 and b is equals to 1. These are the two values of a and b. Okay, hope you have understood. बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है और करने का तरीका जो है बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, पर ध्यान रहे जैसे कि हमने यहाँ पे शिफ्ट करते हुए नेगेटिव को नेगेटिव रखा था, तो इस तरीके के जो गलतियां हैं अगर आप करोगे तो एग्जाम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार आपको वेरीफाई भी कर लेना चाहिए। ठीक है, so hope you have understood up to here. In the next question we are going to solve the same type of question, but the condition is different, that is having no solution say in the question. Okay, but the next question will be done in the next video. Till then you just watch it and try to copy it, try to understand this, and after that go to the next video.